Hello everyone, welcome to my online class. Once again I am present here with a new chapter of grammar. The title of this chapter is being verb. Already I talked about verb in previous video and the types of verb also. So through this video we will learn about being verb and we will learn about usage of this being verb. कौन सा being verb यूज कहाँ पर होता है? फर्स्ट पहले ये जानेंगे कि being verb जो है वह कौन कौन से हैं और इस किस being verb का यूज किस नाउन प्रोनाउन के साथ या किस सब्जेक्ट के साथ होता है. So let's start this class. Am, is, are, was and were. Am, is, are, was, were. Were पढ़ते हैं. The all are being verb. अब देखेंगे इस सभी का यूज किसके साथ होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ, कौन से नाउन प्रोनाउन के साथ होता है. Already I talked also about these things, but once again I am repeating this one, repeating these things. If am, we use am with I, am with I. Is, we use is with he, she, it and he, she, it, this, that and singular. We use am with I, we use is with he, she, it, this, that and singular number. And singular number. Are, we use are with we, you, they, we, you, they, these, those and plural. Plural number. Plural number. We use are with we, you, they, these, those and plural number. The all are am, is, are, was and were being verb. But all we use always this am, is, are in present tense. In present tense. प्रेजेंट टेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं, पास्ट टेंस में नहीं करते. प्रेजेंट टेंस मींस जो अभी समय चल रहा है, वर्तमान काल. एंड वी यूज was and were
साथ हम लोग वाज और वर यूज करते हैं। अब पहले ये जानेंगे कि वाज और वर का यूज किस के साथ होता है। ये आप लोग को समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, देख के समझ में आएंगे। अब वर, we use was with I and he, she, it, this, that, and singular number. We use was with I, he, she, it, this, that and singular number. हम लोग इन सभी के साथ was का यूज करते हैं। I was, he was, she was, it was, this was, that was और वो singular number रहा तब। Now were, were, we use were with we, you, they, the, those and plural number. We use words with we, you, they, these, those and plural number. हम लोग इस सारे के साथ वर्ड यूज करते हैं विद वर्ड के रूप में। अब एंड वी यूज was and were in past tense. What? Past tense. Past tense में यूज करते हैं। ओके। Now after this we will do some exercise using the all big verb. अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज के द्वारा इसको सीखेंगे, इसे यूज सीखेंगे। Now you can see that I have written some sentences on the boards and we will fill this all fill in the blanks with am, is और are. जहां पर ये am, is और are लगेगा हम लोग इसको फिल करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज there dash many flowers in the garden. There, अब आप देख रहे हैं इन फर्स्ट सेंटेंस इट many flowers many means what? many means बहुत सारे, many मतलब अनेक। गार्डन में एक ही फ्लावर नहीं होता, बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो क्या भरेंगे हम लोग? एम, इज और आर क्या भरेंगे? अभी मैंने बताया वी यूज आर इन प्लूरल ऑल्सो। हम लोग आर का यूज हम लोग प्लूरल में करते हैं ना? ओके, सो वी विल राइट what? बहुत सारे फूल है गार्डन में, वी विल राइट आर। There are many flowers in the garden. So this is answer. Second sentence is they dash yellow in color.
तो वो जो गार्डन में फूल है वो किस कलर के हैं? येलो कलर के। एक फूल में दे है, और मैंने भी अभी बताया था कि दे के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? एंड, इज और आर। हम लोग यूज करते हैं आर। दे आर, दे आर। नाउ come to sentence number 3. It dash beautiful. It dash beautiful. अब क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? It है। ये it है ना? अब मैंने भी कुछ बताया था कि it के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? And, is और are। is यूज करते हैं। It is beautiful. It is beautiful. तो इट ही सी इट और सिंगुलर के साथ हम लोग इज यूज करते हैं। तो क्या है यहाँ पर? ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। ये सब्जेक्ट इट, ये क्या है? इट है। तो इट के साथ इज लगाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन। अब आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे। तो ये प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में है। चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड होता है। चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, प्लूरल में है। और मैंने बताया है कि आज का यूज हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं। तो क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रन आर, द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन। सेंटेंस नंबर 5. द टेबल डैश बी। द टेबल, एक ही टेबल के बारे में बात हो रहा है, टेबल्स नहीं लिखा हुआ। जब टेबल्स रहेगा तब हम लोग यहाँ पर मतलब यूज करेंगे आर। देखिए ऐसी टेबल है, एक टेबल के बारे में बात हो रहा है। द टेबल क्या है? सब्जेक्ट टेबल। द टेबल जो है सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? द टेबल इज बिग। द टेबल इज बिग। टेबल कैसा है? टेबल बड़ा है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। आई डैश अ बॉय। ये तो आसान है, मैंने पहले बताया है कि हमेशा जो है एक ही है जो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है। आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। तो आई के साथ हमेशा एम ही लगता है और प्लूरल नहीं लगेगा। आई एम अ बॉय। ओके, एंड लास्ट सेंटेंस। वी डैश फ्रेंड्स। मैंने बताया है कि वी के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स हैं। आर, वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों ने देखा कि इज और आर और एम का प्रयोग कहाँ और किसके साथ होता है। इसको एक्सप्लेन भी किया इससे पहले, जस्ट पहले मैंने। आप लोग भी इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसको अच्छे से सीखिए बनाने के लिए। आई एम अ बॉय, वी आर फ्रेंड्स। आर का यूज कहाँ होता है? तो आर का यूज वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर एंड प्लूरल नंबर, इसलिए आर। So students, through this video, we have learned about big verb, is, are, am, was and were. Thank you.